Sathi or the Green Companion, the bicycle, a powerful tool for access to higher education. The West Bengal government has distributed 1 crore free bicycles to students across the state to encourage children to go to school. The inkpot and stack of books represents empowerment through education. वक्त के आईने से तारीख में दर्ज होता हुआ गणतंत्र दिवस और खूबसूरत पर्वतीय राज्य सिक्किम की झांकी, इसमें पंग लाब्सोल त्योहार को मनाया जा रहा है। सिक्किम के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत की इस त्योहार में पूजा की जाती है। सिक्किम की पवित्र भूमि की रक्षा ये देवता करते रहे हैं। इसी कामना के साथ इस त्योहार पर परंपरागत रूप से प्रार्थना और नृत्य के जरिए देवता का आह्वान किया जाता है। और अब उत्तर प्रदेश की झांकी, इसमें भगवान राम के बनने वाले भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। झांकी के अगले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा है, जिन्हें रामायण की रचना करते हुए दर्शाया गया है। जहाँ योद्धा सिया राम की देती समता का संदेश, कला और संस्कृति की धरती, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। गोरख तुलसी सूर कबीरा भक्ति मार्ग का करें बखान, पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्लाह खान। विविध विचारों का प्यार भरा परिवेश, इसी धरा पर दिया बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश। धन्य धन्य उत्तर प्रदेश, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। सरयू के तट पर दीपोत्सव की छटा बिखरी है। दीपोत्सव ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। आस्था की नगरी अयोध्या, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या। And from Uttar Pradesh, we move to its neighbor Delhi, going past the saluting base. In Rajpath, New Delhi, the tableau from Delhi. Its theme, Shah Jahanabad redevelopment. The tableau reimagines inclusive streets with open public plazas, safe cycle lanes and accessible walkways interspersed with the sound of prayers from diverse places of worship in the area. Color, culture and creativity in its myriad forms on display here. Gliding now past the saluting base, the tableau from Karnataka. Its theme, Vijayanagara, the city of victory.
The Vijayanagara Empire was based in the Deccan Plateau region of South India, founded in 1336 by the brothers Harihara and Bukka. The capital of Vijayanagara Empire was Hampi. In fact, the rule was treated as a golden era in the history of Karnataka. राजपथ पर अब चलते हैं केरल की ओर। झांकी में सुदूर दक्षिण में स्थित केरल राज्य के कोयर को दर्शाया गया है। केरल राज्य की इस झांकी में महिला सशक्तिकरण का चित्रण है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन हो रहे हैं। राज्य के प्रमुख पशु हाथी को भी दिखाया गया है। केरल शब्द का उद्गम केरा से हुआ है, जिसका अर्थ है नारियल, और केरलम शब्द का अर्थ है नारियल के वृक्षों की भूमि। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन। अगली झांकी आंध्र प्रदेश से, जिसमें विजयनगर शैली के लेपाक्षी मंदिर निर्माण को दर्शाया गया है। इस झांकी में विजयनगर साम्राज्य की एक झलक भी हमें देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश के इस लेपाक्षी मंदिर का निर्माण दो भाइयों विरुपन्ना और वीरन्ना ने कराया था। मंदिर के निकट ही विशाल नंदी की प्रतिमा है, जिसका निर्माण एक ही बड़ी शिला से किया गया है। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, a palimpsest of our ancient traditions and modern sensibilities, the essence of India, and now a glimpse of the land of the dawn-lit mountains, Arunachal Pradesh. Is East meets West. The tribes of the state display their cultural and folk traditions. The Mompas are mainly Buddhists, and the Wanchos hail from the east. They are known for their wood carving skill and colorful beadwork. The digital revolution in our country is developing faster than the sound of thought. We had barely gotten used to carrying the world in our cell phones, and now farmers are using drones for farming and phones for banking. हमारी सफलता खुद के दम पर है, किसान हो या चाहे व्यापारी, देश हमारा आत्मनिर्भर है। डिजिटल इंडिया से सबका साथ है, देश हमारा आत्मनिर्भर है। This is the picture of a new India on the fast track. Digital Bharat, Atmanirbhar Bharat. The tableau of the Ministry of Electronics and Information Technology. Now from the Ministry of Labour and Employment for Labour Codes. The tableau shows the segments benefiting the most from the labour. नए भारत में काफी कुछ नया हो रहा है और देश बदल रहा है।
उसी को दर्शाती झांकियां, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ये झांकी जिसमें ऐतिहासिक श्रम सुधारों को दिखाया गया है। मेहनत का सम्मान हो, हक भी एक समान हो, श्रम ही स्वाभिमान हो, श्रम की जय जयकार हो, मजदूर और मजबूत बना, सुरक्षा का विश्वास बढ़ा, माता बहनें अलग नहीं है उनको ये एहसास मिला। लेबर कोड से हर क्षेत्र के श्रमिक को जो लाभ होगा उसे यहाँ दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा की, बड़ा पीला हेलमेट श्रमिकों की सुरक्षा को दर्शाता हुआ। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ये झांकी भारतीय सांकेतिक भाषा एक राष्ट्र एक सांकेतिक भाषा का संदेश लेकर राजपथ पर। चुटकी न ताली, भाषा हाथ वाली, हथेली है ये अर्थ वाली। तितली बनी कभी बने डेमो, देश का एक ही सांकेतिक बोल, मुट्ठी खोली और बात कह डाली, चुटकी न ताली, भाषा हाथ वाली, चुटकी न ताली। झांकी का उद्देश्य इंडियन साइन लैंग्वेज यानी ISL के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। सुनने बोलने की सीमाओं को लांघकर अभिव्यक्ति की भाषा बन जाती है सांकेतिक भाषा। The importance of body language in communication. And from body language to caring for the body. Ojo Bharat, Tejo Bharat. Ministry of Ayush, Government of India. Their theme, Immune India, Active India. ओजो भारत, तेजो भारत, मिलकर यह लक्ष्य साकार करें, आरोग्य रहे मन स्थिर हो, ऐसा कोई उपचार करे, ऐसा कोई उपचार करें। Ayush is a name synonymous with wellness and has established the role of research and the production of natural immunity boosters. The sides of the trailer show various natural products with medicinal properties. In fact, a large twig of giloy binds all around the tableau. संवेदनशीलता भी पराक्रम भी हम हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, लौह पुरुष के लौह पुत्र हैं हम, सरदार पटेल को CRPF। So from a fit body and a healthy body to a physical fitness body. देश के हम हैं रक्षक, क्या भी देते बेशक, देश की रक्षा में वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं, देश की रक्षा में। The tableau from the Central Reserve Police Force, a professional ops force with humane sensitivity, depicting the legacy, valor and the humane face of the force in line with its motto, service and integrity. A much appreciative crowd. The front portion of the tableau depicts the CRPF Jawans in operational areas with modern weapons and armory. The Iron Man inspires the Iron Force. Sardar Vallabhbhai Patel. राजपथ पर अगली झांकी बायोटेक्नोलॉजी विभाग की, जो आत्मनिर्भर भारत को दर्शा रही है। कोरोना मुक्त बनाएंगे, आविष्कार हम करते हैं,
चुनौतियों से लड़ते हैं, आविष्कार हम करते, चुनौतियों से लड़ते, देश की है आन हम, देश की है शान है। कोरोना महामारी पर विजय पाने, उसे पीछे छोड़ने में हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का जो योगदान रहा है, वही बायोटेक्नोलॉजी विभाग की इस झांकी की प्रमुख थीम है। इस झांकी में 5 भागों में जिसे दर्शाया गया है। भारत की चौतरफा उन्नति, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन हो रहे हैं राजपथ पर 72वां गणतंत्र दिवस समारोह। और अब भारतीय तटरक्षक बल की झांकी, जिसमें 2 जहाजों को दर्शाया गया है। हम वीर सिपाही सागर के, हर लहर सलामी देती है, हम तटरक्षक है भारत के। हर जीव में हम ही शामिल है, इंसानियत का जयकारा। कोई दोस्त पुकारे मुश्किल में, या हो दुश्मन ने ललकारा। पीछे हटना सीखा ही नहीं, हर तूफान को तैयार है हम वतन मेरे साथ, हम तेरे रहो निडर। भारतीय तटरक्षक बल की इस झांकी में बल के डिप्टी कमांडेंट आलोक उपाध्याय सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं। The tableau is being enjoyed here by the visitors, and this is the tableau of the Ministry of Information and Broadcasting. Of course, the theme is Vocal for Local, New India. The tableau showcases a mass movement to encourage products built, innovated and marketed by Indians. All India Radio and Doordarshan have always been the most impactful vehicles of communication in India's growth story, because they connect with people of all ages and walks of life all across the country. India moves towards modernity. We cut mountains but connect hearts is the perfect description of the work of the Border Roads Organization, BRO. देश का है प्यारा सीमा सड़क हमारा, श्रमेण सर्वं साध्यम है हमारा नारा। किनारा, लद्दाख हो आसाम हो या हो दुर्गम किनारा, हमने वहाँ भी लाया प्रगति का नया सवेरा। चांद पे है खेला हमने, हार कभी ना माना। चांद पे है खेला हमने, हार कभी ना माना। BRO was raised in 1960 and has many landmark achievements. They've built 60,000 kilometers of roads, thousands of meters of permanent bridges, and 19 airfields. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी इस बार समर्पित है भारतीय सेना के अमर जवानों को। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं,
मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ। फूलों से सजी झांकी में राष्ट्रीय समर स्मारक है, इंडिया गेट है और इन वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाती उन्हें नमन करती वो झांकी। और उसके बाद ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी जो थीम लेकर आई है आजादी का 75वां वर्ष। ये झांकी ऐलान करती हुई कि इस साल 15 अगस्त से आजादी का 75वां साल शुरू हो जाएगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती is by Delhi Tamil Association of Schools, a rainbow of the colors of the traditional folk dances of Tamil Nadu. Tamil Nadu has a rich tradition of folk dances. राजपथ पर नृत्य कौशल, सांस्कृतिक वैभव, परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। और अब सलामी मंच के सामने पहुंचने की बारी है राजकीय उच्चतर कन्या विद्यालय यमुना विहार दिल्ली की 102 छात्राओं की, जिनका नृत्य फिट इंडिया अभियान को समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका मकसद हर भारतीय के जीवन में खेलों को अनिवार्य रूप में शामिल करना और स्वयं को फिट रखना शामिल है।
मुश्किल, ये रोग बड़ा ही जटिल, एक योग भी रास्ता है, फिटनेस ही है मंजिल। मिलकर बढ़ें और मंजिल की ओर लाए नए फिट इंडिया का दौर। यही संदेश है फिट इंडिया मूवमेंट को समर्पित इस नृत्य का। Well, our folk dances keep us fit as well because they are so vigorous and enthusiastic. We now have the Eastern Zonal Cultural Centre of Kolkata performing Baja Sal, one of the traditional folk dances of Kalahandi, Odisha. This dance is usually performed at weddings. जमाल के सरीक की पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के 80 लोक कलाकार नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करते हुए राजपथ पर धीरे धीरे सलामी मंच के सामने से अपने प्रस्तुति को अंजाम तक पहुंचाने के क्रम में इन लोक कलाकारों के बाद अब बारी है माउंट आबू पब्लिक रोहिणी और विद्या भारती स्कूल रोहिणी दिल्ली के 38 छात्र और 54 छात्राओं की, जो राजपथ पर आत्मनिर्भर भारत की छटा बिखेरने वाले हैं। भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने की ओर सशक्त कदम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों का आह्वान, जिसकी झलक राजपथ पर नृत्य के माध्यम से। Build an Atmanirbhar Bharat of our dreams. With their mesmerizing dance moves, they are here to celebrate economic growth, technological development, new education policy, skill development, and women empowerment. Atmanirbhar Bharat.
जगत हर क्षेत्र हुआ समृद्ध सशक्त, अपने दम पे जीना कर दिया शुरू, नया इतिहास बनाएंगे, बनेंगे विश्व गुरु। से लेकर सैटेलाइट बनाने की जिद पर होगा भारत का ऊंचा नाम विश्व पटल पर। भारत हो रहा है आत्मनिर्भर, भारत के आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, नई शिक्षा नीति, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के दृश्यों को साकार किया राजपथ पर इन छात्र छात्राओं ने अपनी मनोहारी प्रस्तुति से। Color, culture and creativity coming together to paint scenes of visual delight as tableau and dances from different parts of India went past the saluting base. India is a land of contrasts and contradictions, blending and knitting together the fabric of a nation. सलामी मंच के निकट 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का कंट्रोल रूम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के नारे के साथ कर्नल मंजुनाथ राजू के नेतृत्व में ये रेजिमेंट भारतीय वायुसेना के साथ फ्लाई पास कंट्रोल के लिए संचार प्रदान कर रही है। And now all eyes will turn skywards as we are about to witness the grand finale of the Republic Day function. The Indian Air Force will present a stupendous fly-past. Precision at tremendous speeds will be on display. In fact, traditionally fly-pasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, showcase flying skills and delight the public. In the words of a fighter pilot, when you are up in the sky, the thunder becomes felt in the heart, not in the head. गतिविधियों का केंद्र अब आकाश होगा। दृश्य और ध्वनि का जादू छाने वाला है। शुरू हो रहा है वायुसेना का फ्लाईपास्ट के लिए विमान देश के अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ पहुँचे हैं और बारी बारी से राजपथ के ऊपर से गुजरेंगे। सबसे पहले हम आकाश में देखेंगे रुद्र फॉर्मेशन। इसमें एक डकोटा हवाई जहाज और उसके साथ 2 मी-17 हेलीकॉप्टर्स होंगे। ये विग फॉर्मेशन में होंगे। इस फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मेनन और विंग कमांडर एस गहलोत ने, जो वायुसेना की हेरिटेज फ्लाइट के डकोटा को उड़ा रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर मुकुल खरे और स्क्वाड लीडर राठौर हैं। सैनिकों और साजो सामान लाने ले जाने के लिए डकोटा ने 1947 में कश्मीर घाटी और 1971 में भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। डकोटा विमान, 2 हेलीकॉप्टर्स, ये फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन मेनन और विंग कमांडर एस गहलोत की कमान में रुद्र फॉर्मेशन। The diffused glow of a chilly January morning, witnessing along with all of us present here, the first formation of the fly-past, the Rudra formation. The Rudra formation will be followed by the Sudarshan formation, consisting of 1 Chinook and 2 Mi-17 helicopters in Vic formation. The Chinook is a heavy-lift twin-rotor helicopter which has enhanced the Indian Air Force's lift capability across a range of military and HATR missions. The formation will be flying at 160 kilometers per hour at a height of 60 meters above all of us. Formation is led by Group Captain Siddharth Rawat, Commanding Officer 126 Helicopter Flight. The other formation members are Wing Commander Rohit Singh Thakur and Wing Commander Nikhil Mehrotra of 129 Helicopter Unit. Formation led by Group Captain Siddharth Rawat.
सुदर्शन के बाद रक्षक फॉर्मेशन, हेलीकॉप्टर्स, एक मी-35 और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स विंग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए। इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी ने संभाली है। ग्रुप कैप्टन इंदुमीत सिंह, विंग कमांडर प्रवीण सारथी, विंग कमांडर आनंद कुमार यादव और विंग कमांडर मुनीत डोगरा इस फॉर्मेशन में उनके साथ। रफ्तार है 180 किलोमीटर और जमीन से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। Pace, the speed, the heartbeat building up as the Indian Air Force presents its flypast. Beautiful images captured by a specially placed cameras by Team Doordarshan. And following the Rakshak formation will be the Bhim formation, comprising 3 C-130J aircraft in big formation. The C-130J is the special ops aircraft of the Indian Air Force and is capable of operating from remote places with short and semi-prepared surfaces. The aircraft is used for covert insertion, special airdrop and air-landed missions, base defense, casualty evacuation and of course humanitarian relief in remote areas. Formation led by Group Captain Mandeep Chahal, commanding officer of 87 Squadron. The captains of the other 2 aircraft are Wing Commander Ankit Raj Singh and Wing Commander Naveen Chand. उमंग और जोश बढ़ता हुआ और भीम के बाद निगाहें आकाश की ओर, तो आकाश में भी निगाहें। नेत्र फॉर्मेशन यानी आकाश में निगाह, यह हवा में एक ऐसा अर्ली वार्निंग रेडार है जो 400 किलोमीटर तक के इलाके में दुश्मन की हरकत को भांपकर लक्ष्य को भेदने का निर्देश दे सकता है। इस सिस्टम को डीआरडीओ ने विकसित किया है। नेत्र विमान के दोनों ओर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हैं। इस AEWN-C को ग्रुप कैप्टन पी सिंह उड़ा रहे हैं। सुखोई 30 विमान में विंग कमांडर वी भोज, उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर टी अली, और दूसरे सुखोई 30 विमान में विंग कमांडर एस अधिकारी, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट धीरज यादव। 300 मीटर की ऊंचाई और 550 किलोमीटर की रफ्तार। And now we await the Garuda formation. Flying at a height of 550 kilometers per hour at a height of 300 meters above the ground level. The speed slowly increasing. The Garud formation will comprise 1 C-17 Globemaster with 2 MiG-29s and 2 Su-30 MKI aircraft in big formation. The C-17 is a heavy-lift, long-range strategic airlift aircraft. C-17 captained by Group Captain Pranav Sisodia, commanding officer of 81 Squadron. Flanking him on 2 MiG-29 aircrafts piloted by Group Captain Kapildeep Singh, commanding officer of 223 Squadron, and his flight commander, Wing Commander Ankur Hakim. The outermost tier had 2 Su-30 MKI aircraft piloted by Group Captain GBS Chauhan, Vayu Seva Medal, commanding officer of 31 Squadron, with Squadron leader GS Dutt and Wing Commander Ravi Huda with Flight Lieutenant Prakhar Kumar. रोमांच और बढ़ता हुआ और गणतंत्र दिवस परेड पर पहली बार रफाल, 1 रफाल, 2 जैगुआर और 2 MiG-29 एकलव्य फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया कर रहे हैं। फॉर्मेशन में उनके साथ हैं विंग कमांडर वरिंदर सैनी, विंग कमांडर आकाश चेची, ग्रुप कैप्टन जीजो जोस ओविलल और विंग कमांडर नितिन नागरकोटी। 300 मीटर की ऊंचाई और रफ्तार 780 किलोमीटर प्रति घंटा। एकलव्य फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया की कमान में। The limitlessness of the sky setting the tone for the limitless passion, expertise and skill of our pilots from the Indian Air Force. And now the Trinetra formation is going to come out.
comprising 3 Su-30 MKIs. The 3 aircrafts, as they come up, will split outwards and upwards, forming a trishul in the sky. Formation led by Group Captain Ajay Mishra with Squadron Leader R.C. Kulkarni. The captains of the other 2 aircraft are Wing Commander Karan Dev with Flight Level A.S. Tilsa and Squadron Leader The formation is led by Group Captain A.K. Mishra, commanding officer and Squadron Leader R.C. Kulkarni. The captains of the other 2 aircrafts are Wing Commander Karan Dev with Flight Lieutenant A.S. Dhinsa and Squadron Leader H.J. Singh with Squadron Leader Shobit Mishra. Peeling outwards and upwards. Trinetra. Trinetra formation. राजपथ के आकाश में इस समय 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विजय फॉर्मेशन में तिरंगे के रंगों को राजपथ के आकाश में रंगते हुए। इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन गिरीश कुमार ने संभाली है। उनके साथ विंग कमांडर स्नेहा कुलकर्णी और विंग कमांडर वाई श्रीधर तिरंगे के रंगों की छटा को बिखेरते हुए। Colors of the national flag coloring the sky, and now everybody, we will hold our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. Absolutely gravity-defying aircraft piloted by Group Captain Harkirat Singh Shaurya Chakra, commanding officer of 17th Squadron with Squadron Leader Kislay Kant. Nava Sprisham Deeptam, a befitting salute to the motto of the Indian Air Force. Absolutely awe-inspiring and thrilling. A lot of training goes into what seems to be effortlessly done over here. And that is the charm, that's the beauty of every professional, every perfect display. The Indian Air Force always coming up first every time. इस समय सभी के मन के भाव जमीन, आकाश, पूरे वातावरण में बिखर गए हैं। बड़ा ही भव्य फ्लाई पास्ट, रोमांच और उत्साह आज के इस 72वें गणतंत्र दिवस पर शानदार फ्लाई पास्ट, मन के भाव आकाश को छू रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व की भव्यता शब्दों की हदों के परे है। Spectacular scenes of a spectacular Republic Day parade, the 72nd Republic Day of India draws to a close. What a day this has been. The spectacular parade on Rajpath reflects our great love for our country. It is a re-expression of our gratitude to the armed forces for their dedication and protection. The spectacle of our cultural heritage is a reminder of who we truly are and gives strength to each one of us to carry on with whatever we do best. For the greatest service to the nation is to be true to ourselves. In the distance, the President's bodyguard returning to the saluting days. वायु विचरण करते उन्नत विमान, राजपथ पर गरजने वाले अस्त्र शस्त्र, भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव, उसमें अनुपम कलात्मक सौंदर्य का समावेश, अपार जनसमूह की भागीदारी, 72वें गणतंत्र दिवस को पूर्णता प्रदान करते हुए ये सभी चीजें राष्ट्रीय उत्सव
इस समय समापन की ओर अग्रसर। पृष्ठभूमि में 46 सजीले घुड़सवार अंगरक्षक, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की टुकड़ी। सन 1773 में गठित घुड़सवार अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की प्राचीनतम और वरिष्ठतम रेजिमेंट है। ऐतिहासिक इंडिया गेट के ऊपर शाश्वत लौ प्रज्वलित है, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले उन सैनिक